ایک دن ندوے سے کتاب لیے پڑھ لیے جواب دے دیے، ایک دن دیوبند سے کتاب لیے پڑھ لیے جواب دے دیے، ایک دن بریلی کی کتاب پڑھے جواب دے دیے، ایک دن نظامیہ کی کتاب پڑھے جواب دے دیے۔ یہ حق میرے والد جیسے علماء کو ہو سکتا کہ وہ کچھ بھی پڑھے، ان کا بیان کرنا صحیح ہے۔ ارے بھائی 4 سال شیخ الجامعہ رہے، 13-14 سال امیر جامعہ رہے، اور کوئی امیر جامعہ ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ تھا سب سے چانسلر کا، لیکن اس کے باوجود میرے والد کلاس لیتے تھے۔ خالی شیخ الجامعہ لے سکتا کلاس، بس چانسلر کی کلاس لیتا تھا، لیکن میرے والد لیتے تھے، اور اس پہ کیا کہتے ہیں آپ شرح معانی الاثار وغیرہ پڑھاتے تھے۔ تو وہاں نظامیہ میں نہیں، گھر پہ بلا لیتے تھے، نظامیہ سے قریبی چلے، تاکہ کوئی چیز وہاں کے شیڈیول میں کوئی فرق نہ آئے، وہاں کے اسکیڈول میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے 13-14 سال یہ، 4 سال یہ، اور اس سے پہلے دائرۃ المعارف میں ریٹائر ہوئے تک تو خالص عربی لٹریچر اور قرآن و حدیث کی تفسیرات حدیثیں پڑھے۔ اس کے باوجود اللہ بہتر جانتا ہے 2500 مرتبے کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ جب دیکھتا بھائی ہر تھوڑی دیر کو لغت دیکھتے تھے، کبھی مسئلہ بیان کرتے فوری وہ کتاب ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہو گیا، آتے ہی جواب دینا، ارے کیا آتا اس کو، جواب فوری نہیں دیے تو اس کو کیا آتا بول رہے۔ اور حالانکہ میرے والد کا ادب بھی بہت پیارا تھا، آج کے جامعہ نظامیہ کے 100 علماء پہ بھاری بہت ایسا چرچ کرنا، اور خود ان کو بھی ایسا احساس تھا۔ رائچور کی ایک مسجد تھی، اس میں شہر وغیرہ کے کچھ اس میں بلگیات تھے، تو بلگیات سے فائدہ اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے سوال۔ تو دارالعلوم حیدرآباد مولانا عاقل صاحب کے ادارے نے ایک فتویٰ دیا، پھر وہ لوگ جامعہ نظامیہ سے رجوع ہوئے تو جامعہ نظامیہ والے ایک فتویٰ دیا۔ اب رائچور میں تنازع ہو گیا، نہیں یہ فتویٰ صحیح، یہ فتویٰ صحیح۔ میرے والد سے کہا گیا تو میرے بولے دیکھو یہ فتوے آ گئے 2 طرف سے، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تو انہیں وہ فتویٰ دیتے تھے، امیر جامعہ ہے تو فیصلہ کرتا ہوں، اور اب ایسا امیر جامعہ ہے میں کیا بولوں، قرآن بغیر آپ کے نہیں پڑھ سکتا، حدیث تو 1 لائن بھی نہیں پڑھ سکتا، خطبہ نکاح پڑھے تو کاغذ دیکھ کے پڑھنا پڑتا اس کو۔ کیسی نظامیہ کی وفات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ساری دنیا بول رہی، انہیں پیسے کھا گیا، مقدمہ جاری کر دیا گیا، پھر بھی اس کے باوجود اس کو رکھا گیا۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، چاہے میرا چچا ہو، چاہے کہ کوئی میرے بچے کے برابر ہو۔ امیر جامعہ نظامیہ کے بارے میں بول رہا ہوں، اب امیر جامعہ یا شیخ الجامعہ ہے تو میں اتحاد المسلمین کو کہیں کو بول رہا ہوں، نہیں اتحاد المسلمین والے ان کی بیکنگ کر رہے تو پیٹ کی طرف سے آن دو، پیٹ کی طرف سے آن دو، پیسے بھی آن دو، ہم ان کو بولنے کا حق نہیں رکھتے جب تک کہ آپ رائٹنگ کوئی چیز نہ دے دیں۔ سرکار علی تلوار لے کے گئے مارنے، اب قتل کر رہے انہوں نے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چھپ رہے تھے، گئے قتل کرنے کے واسطے منہ پہ تھوک دیا، بولے اب تک تو میں اللہ کے واسطے مار رہا تھا، لفظ آ گیا نا، تھوکا تو آ گیا جوش،
تو نہیں اس کے واسطے نہیں لا الہ الا اللہ. یہ تو اللہ کے واسطے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برابر خدا کی قسم ہم کو امر بالمعروف کا حکم دیا گیا, نہیں عن المنکر کا حکم دیا گیا, حق بات کو پہنچانے کا حکم دیا گیا, لیکن ہر چیز معرفت کے بعد. ارے بھائی امام اعظم و حنیفہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک چور آیا بھاگتے ہوئے گیا سامنے سے, تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی. آپ بھائی کھڑے ہوئے تھے, دیکھیں کہ کوئی انسپیکٹر آیا ہے تو فوری آپ اپنا پیترا بدل لیے. پہلے ایسا کھڑے تھے تو پھر ایسا ہو گیا اور جگہ بدل وہیں پہ جگہ بدل. آگے انہوں نے بولا کسی کو دیکھے آپ یہاں سے جاتے ہوئے؟ کہا جب سے یہاں کھڑا ہوں قربان جائے شان ستاری. تو مطلب ہے کہ چور کو بھی چور بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ دوسروں کی عیب دری کیسا کرتے ہیں. انہیں صحیح کرا غیر وہ معلوم ہوئے بات سزا دینا. سرکار کے پاس آیا, ضلع کرا, سزا دے دو. سرکار دیکھ سوچ لے, ادھر آ, ادھر سے آ کے بولا کچھ بھی حکم نہیں دیا. وہاں سے پھر بولا تو بولے اچھا اس کو سرکار. اگر کسی کو گناہ سے بچا سکتے ہیں تو بچا لینا. ہاں اللہ اس کے کہ ہمارے دین میں کوئی خلل بہت ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو انتہائی معذرت کے ساتھ میرا چیچا ہوگا وہ کوئی بھی سدرشن ریڈی کی تعریف ہے, اکالو سویٹ کو بولتا ہے. اللہ محفوظ رکھے کفر تک پہنچ جاتے ہیں. تو علم سب رکھ لینا, بابا کے طریقے میں چلنا. بابا کا طریقہ یہی ہے کہ فقہ کی پابندی, جوابات سب کے پاس ہے. پہلے تو بڑوں سے جواب بھی لے دینا, بڑوں کا جواب بھی لے دینا. ہاں اللہ اس کے کہ ڈاکٹر کرے, پی ایچ ڈی کرے, پی ایچ ڈی کی سند آ گئی, فاضل قابل کرے, سند آ گئی, تو پھر اس میں بھی ایکسپیرینس ہونا پڑتا بہت. اللہ ہمارے کو بچائے, خدا کے قسم دل سے بول رہا ہوں. اور آپ جانتے ہیں, سبھی جانتے ہیں, میں نے اکبر نظام کا تعلق رکھا. حالانکہ مجھے دیکھ دیتا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں ان کی تقریر سنا, اکبر کی اسمبلی میں تقریر سنا, میری رائے بدل گئی. کچھ بھی ہوگا اس کا آلٹرنیٹ کہاں ہے ہمارے پاس. اگر آلٹرنیٹ ہے تو وہ سدرشن ریڈی ہے. اب سدرشن ریڈی کو میں کیا صحیح بولوں گا؟ انہیں کس کے ساتھ ہے, اور اس کا ساتھ دینا کفر کا ساتھ دینا, آر ایس ایس کا ساتھ دینا. اللہ کی قسم یہ کوئی دشمنی سے نہیں ہے. رب العزت کی قسم میرے باپ کی دشمنی نہیں ہے, یہ نصیحت ہے خیر کی. بڑوں کو جواب دینا یہ بھی خطا ہے. خطائے بزرگا گرفتن خطاس. اور پھر جو سلسلے میں داخل ہو اور اس کے بعد ایسا عقیدہ رکھے اور کسی کو ظالم کہے, ظلم کو پسند کرنا بھی ظلم ہے. کون سا ظلم, کس کا ظلم؟ میرے کچھ مسئلے میں کچھ بولنا نہیں ہے بھائی, کوئی چاہو نہ کوئی چاہو, پالیٹکس ہے. اب مطلب یہ ہوتا کہ اگر ہم کچھ اپنی بات بول دیتے ہیں ٹھیک ہے, اب آپ تھوڑے دنوں سے یہ بھی شروع ہوگا سود کے مسئلے پہ, سود ایسا ہے, حرام ہے, یہ ہے, کہیں کو لکھ دیں گے کیا دیکھیں.
दो तीन बड़े उलमा हमारे घर के लिखे, कई को है नहीं बोलूं। हमारे वालिद ने एक मजमून लिखा था सियासत में आया क्या है, तो उसका मतलब क्या था? जी, मासूम और गैर मासूम माल की तारीफ की। उसका मतलब यह था कि देखो इसको ला रिबा बैला मुस्लिमिन व हर्बी, एक मुसलमान और काफिर के दरमियान जो मुआमलत होती है जी, दारुल हर्ब में, दारुल कुफ्र में, क्या हिंदुस्तान दारुल कुफ्र है? नहीं, बेशक है। अगर नहीं तो तोगाड़िया वगैरह ऐसे बड़े बड़े बातें करते हैं। आप बोल रहे सही है, लेकिन मौका उनको मिला तो गुजरात में जैसा काट दिए, हैदराबाद में नहीं काट दिए, एक्शन में नहीं काटे, काका नहीं कट रही, काका नहीं कर रही, तो दारुल कुफरी चला। तो अब इंटरेस्ट वगैरह को बोले ये जायद रखा भाई, इसको इंटरेस्ट को बोलो। सूद की तारीफ बयान की। मिस्र से भी यही फतवा आया जी, कि वो लोग भी 19 फुक़हा, हमारे फुक़हा के वैसा नहीं, साइकिल पे जा रहे थे, मोटरों में उतरते खास खास वो लोग, गवर्नमेंट सरपरस्ती करती, वजीर के दर्जे के मुताबिक रहता वाक़ा, शेख जामिया, अमीर जामिया तो और भी बड़ा। तो ये तय हुआ कि देखो जो सेविंग अकाउंट है वो जायज़ है, और बताया कि जाओ सऊदी अरब में भी ये हुआ। इस वक्त वहाँ पे लिखा सर्विस चार्जेस लिखो, इंटरेस्ट लिखो। हैदराबाद में ये हुआ कि भाई आते ना आके मार्केट वगैरह के लोग बोलते भाई ये हमारे को इंटरेस्ट नहीं होगा। तो साहब ये तरीका है हमारे पास का, आप देना पड़ता। तो तुम कुछ भी कर लो, तो बोले आप मेरे को लिख दो। तो मेरे इधर के नाम अथॉरिटी लिख दिए। तो मेरे भाई जाना पड़ता था ज़्यादा धड़वत वगैरह की रकम डालने के लिए, गुत्तेदार कॉन्ट्रैक्टर थे। तो वो लेके पैसा मैनेजर को दिए। अब धड़वत की रकम वगैरह तो मैनेजर से ही लेना पड़ता था, सेक्शन कराना पड़ता, तो मुलाकात को जाना पड़ता था। तो क्या हुआ, बारकस का नौजवान गया, वो जितने पैसे थे चारूदार के पुजारी को बुला के दे दिया। और इससे पहले इंडिया में भी बॉम्बे के अंदर ऐसा मामला हुआ, तो उस पर्चा पर पैसा बॉम्बे के बैंकों से चर्चों को चले गया। तो कहे भाई ले लो, और बगैर स्वाब की नीयत से दे दो। लेकिन अब बरेली हो निजाम जाओ, बरेली बोलती दारुल हर्ब के अंदर कुछ भी हो, लेकिन ऐसे हालात आ गए तो काफिर के साथ बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लो, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप डीलिंग कर रहे हैं अगेंस्ट इस्लामिक लॉ, तो ये जूस जायज। और यही बात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस बरेलवी ने की, शाह वलीउल्लाह ने भी की, और ये बता दिया ला रिबा बैना मुस्लिमिन व हर्बी, रिबा नहीं है हर्बी और मुसलमान के लिए। फिर बार बार सूद का क्या लिख रहे हैं? क्या जरूरत है हमारे को सूद के बारे में बोलने की? और कोई नहीं लेता है, अच्छी बात है भाई, आपको ज़कात देने का हुक्म है 2.5%, आप 2.5% नहीं 10% दे रहे, दे दो। आप नहीं लेना चाह रखो दो। तो लेकिन उसको इल्जाम देना ये गलत है, और इंतहाई गलत है। अब बादशाह अहमद फतवा दे रहे, देखो पैसे रहे तो बिस्मिल्लाह वगैरह सब जायज़ है। अच्छा पैसे रहे तो बिस्मिल्लाह जायज़ है, उरस वगैरह। पैसे नहीं है तो ना बिस्मिल्लाह का ना उरस का है। ये फतवा तो फिक़ह की किसी किताब में नहीं है ऐसा, पैसे रहे तो कोई काम करना, पैसे नहीं रहे तो कोई काम नहीं करना। तो बड़े बड़े उलमा से भी गलती हो जाती। एक बड़े आलिम है, मैं क्या बोलूँ, हैदराबाद के नाम लिए तो दांतों में उंगली रख लेना। और बोले देखो इस वक्त बात है
फारूक को ऐसा होता है, एक बार जहन में आती और दूसरी लम्हे वो जहन से निकल जाती और आ गया बुढ़ापा फारूक को और बीमारियाँ भी है। तो इस वजह से अगर कोई बात नहीं बोल सकता तो आप फरमाइए। तो अजीबोगरीब बातें कर जाते थे वो। और कुरान की तफसीर में अच्छी खासी जो है तफसीर चल रही, एक मोटा मसला छेड़ते और बगैर जवाब दिए आगे बढ़ जाते। तो ये तफसीर तो नहीं हुई ना। अब सब बड़ा समझते होंगे भाई, इसका जवाब कहाँ दी। तो हर चीज को समझने की जरूरत है। बगैर समझे कोई बात आप बयान नहीं कर सकते कि के बड़े आलिम है, फाजिल है। आलिम है तो फाजिल है। बहरहाल मेरे इमाम शेख अनवरुल्लाह फारूकी का हाल ये था, मैं जो भी बोल रहा हूँ इसका जवाब सुनना नहीं चाह रहा किसी से भी। मेरी बात पे गौर कर रहे कोई बोल रहा हूँ और मेरा एहसास है कि यार फिर वक्त जवाब देने वाले नहीं है कोई भी। और अपने को कमतर समझने भी भलाई है। सरकार फरमाए बड़े को पहले बोलने दो। छोटे साहब बोलने थे कि पहले बड़े को बोलने दो। ऐसी ध्यान रखना है इल्म में भी। अल्लाह की तरफ से होती फजीलत। जो जिसके करीब हुआ निस्बत ख्याल को निस्बत में तो क्या हाल होता सुने ला शेर। और खुद करीब हो गए तो अल्लाह रसूल की कसम क्या हाल वाला। उनके करीब हुए तो फिर अल्लाह कामयाब हो गई जिंदगी। अरे लोग तो उनके कुत्ते के करीब नहीं समझते अपने को। उनका सगे बीराशो चुखाही रब्बानी के बर शेरा शरफ दारत सगे दरगाह जीला। अरे ये पीरे पीरा गौस पाक जो है ना उनका कुत्ता बन जा। सगे बीराश को बोलने वाले कौन है? अब्दुर्रहमान जामी। उनकी किताब पढ़ाई जाती मौलवी वगैरह में एरा वगैरह के वास्ते। मशहूर किताब है शरह जामी। सुभान अल्लाह। उलमा भी नहीं पढ़ सकते उसको, है मौलवी में लेकिन पढ़ते खास से। निजामिया हो जब तो चंद आयतें इधर उधर की पढ़ाते हैं। एमए है चंद आयतें इधर उधर की पढ़ा देते हैं। अच्छा सूर्य पढ़ाते होंगे यूनिवर्सिटी में, चंद आयतें पढ़ा देते हैं। तो एल बहुत अहमियत की हाल है। और फिर उलमा में भी जैसे अनवरुल्लाह खान फारूक है, फिर उनके तिलमीज़ के तिलमीज़ मेरे बाप भी अपने ज़माने में बड़े आलिम थे। बाप बोल के नहीं, अल्लाह का करम था उनके हाल पे। और एक मरतबे बड़ा मसला था, बीबी आयशा से निस्बत देते थे और बोलते छोटे उम्र की बच्चियों को करना। हजरत की ऐसी लाजवाब तकरीर थी ताबीर मिन्नत के अंदर सारा दिल से बोल के लोग अशश करके रह गए। यानी तहकीक ही नजर रखते थे। और तहकीक बच्चों की तहकीक की तरह नहीं कि जा कोई बल भी आ गई बात लिख दी। इंतहाई और अंग्रेजी के बाद कुरान में आया, कुरान को सब समझ सकते हैं लेकिन वही लिख दिया गया क्या है।
किताब युसरुर क्या उसके साथ लिखा हुआ है फहल में मुद्दकी, ये किताब तुम्हारा को आसान बना दी गई है, तो कोई है इसको याद करने वाला? याद करने में आसान है जी, मसाइल के इस्तेमाल पे आसान नहीं है। बाद अल्फाज के मानी को समझने के लिए आसान नहीं है। इब्न अब्बास ने फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखो कुरान की जो इबारतें हैं ना, कुरान से साबित नहीं हुए तो पुरानी शायरी पढ़ो अय्याम जाहिलियत की। ये जो असाब सबा क्या है, वो शायर जो सबा शायर है, उनकी किताबें कहीं को पढ़ाते हैं अरबी के वास्ते, अरबी दानी के लिए। और फिर क्या क्या चीजें, फसाहत अलग है, बलागत अलग है, पढ़ना पड़ता है उसको। सर्फ अलग है, लहू अलग है, कब को होला मुहारत उसमें। अल्लाह तबारक व तआला हम पे करम फरमाए, हम पे फजल फरमाए, हम पे रहम फरमाए। या अल्लाह सैयदी अनवारुल्लाह खालसा फारूकी के क़ब्र शरीफ में नूर भर दे, मेरे बाप की क़ब्र में नूर भर दे। या अल्लाह सारे उलमा, सारे मुसलमानों को मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह बुजुर्गों के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उनके फ्यूज़ को आफ़ कर। या अल्लाह हमारे दिलों से कीड़े को निकाल दे। या अल्लाह हमारे दिलों से कीड़े को निकाल दे। या अल्लाह तू हमको शफ़क़त करने वाला बना। या अल्लाह तू हमको इज्जत करने वाला बना। या अल्लाह हम हर साहिब इज्जत की इज्जत करें। या अल्लाह जो सरकार के गुस्ताख है, जो सरकार की तौहीन करते हैं, जो उसकी मुवाफ़क़त करते हैं, या अल्लाह तो उनको हिदायत दे और हमारे को ऐसी तौफ़ीक़ दे कि हम बुरों की संगत से दूर कर दें। या अल्लाह हमको बुरों की संगत से दूर कर दे। या अल्लाह जो तेरे हबीब के चाहने वाले हैं, या अल्लाह उनकी बुराइयां भी हैं तो तू उनको माफ़ कर दे। या अल्लाह तो उनके अंदर कैसी भी बुराई हो, रसूल पाक के दामन के सदक़े में माफ़ कर दे। गौस पाक के दामन के सदक़े में माफ़ कर दे। या अल्लाह कैसे भी हो वो रसूल से निस्बत रखते हैं, तू लाद रख ले उनको, कोई भी नहीं उनका तेरे सिवा, तेरे हबीब पाक के सिवा। और तेरे हबीब का तो वादा ही है कि मैं राज़ी नहीं होगा जब तक कि मेरे हर गुलाम को दोज़ख से बाहर न निकाल। या अल्लाह तू उनकी बात को पूरा करने वाला। या अल्लाह तो आपको गुमराहियों से बचाने वाला। ये बात तो मुख्तसर कलिमात थे जो मैं वालिद जी के लिए बयान किया, समझा। ये बुरा रहा, थोड़ा सुना तो ये भी एकदम हाथों को आप दुआ के लिए उठा दिए तो दो चार दुआ करना पड़ा। भूख लग रही शुगर ज्यादा नहीं, थोड़ी देर में खत्म। बेशक क्या लिखा हुआ है अकीदा, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वहाबी, सलफी एंड शियास। जल्दी जाओ। अकीदा ये है जी, अकीदा बोलते हैं बिलीफ को, और बिलीफ कुरान और हदीस से साबित होना। मसाइल, जो मसाइल होते ना वो उलमा मुफ्तियाँ साबित है। उनके पास क्या है, उनके पास बड़ी किताबा है, आलमगीरी है, रद्दुल मुख्तार है, दुर्र मुख्तार है, सब जब फिर और ऊपर गए तो हदीस कुरान है, और हदीस कुरान से मसाइल निकालने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा है, इमाम शाफई है, इमाम मालिक है। तो ये वहाबी, सलफी, शिया से कहता तो पहले वहाबी का अकीदा जानना। वहाबी का अकीदा क्या है? ये तो शियों से भी बदतर कौम है। इसको उलू बोलिए तो क्या होता है, अहले सुन्नत वल जमात, अपन नहीं बोल लो। बिल्कुल। वहाबी का अकीदा ये है कि सरकार की इज्जत और अजमत से मुंह मोड़ा जाए। जहाँ सरकार की रिफत
दायर होती है उसको कब्तर करके बताता हूँ। अब जैसे वह आप किसी जुमे का खुतबा सुनेंगे शफाअत के ऊपर, तो उन्हें शफाअत को तंग करके बता दे, ऐसा बताता जैसा वो शफाअत की कोई कदर ही चली। पर अल्लाह जिसको माफ करा उसको माफ, अरे अल्लाह माफ करे बाद रसूल पाक को माफ करा नहीं जरूरत ही क्या है? ये गुफ्तगू समझ में नहीं आई। अल्लाह माफ कर दिए बाद अब फिर क्या है गुफ्तगू है? बल्दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अरे इनका इज़्न हो गया जी, नहीं आ गया, सही हदीसों में नहीं आया, बुखारी में मुस्लिम में। सब लोग जाएंगे परेशान हो जाएंगे क़यामत में, तो हज़रत आदम के पास जाएंगे, आप हमारे बाबा है ना, हमारी शफाअत करो, हिसाब किताब शुरू होना, जन्नत वालों को जन्नत, दोज़ख वालों को दोज़ख में भेज दो। मेरे को खता याद आ गई, मैं नहीं कर सकता, जाओ तुम लोग के पास, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। मुझसे बोलेंगे नहीं भाई भी भूखा मारा था ईसा भी ऐसे ही सुनाएंगे, इज़हबू इला गैरी बोल रहे, जाओ मेरे सिवा दूसरों के पास जाओ, और सरकार के पास जाएगा तो सरकाफा हुआ, इधर आओ मेरी तरफ। गुनाहगारों को बोल रहे हाँ अरे इधर है रे भाई, कमली में छुपाने वाला आ जा इधर, सही जगह पे आया। अब तू सही जगह पे आया, गिर जाएगा, सजदे में गिर जाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला खुद फरमाएगा अजी उठाओ, सजदे से सर उठाओ, शफाअत करो मैं कबूल करता हूँ। आप सजदे से सर उठाओ, शफाअत करो कबूल करता हूँ। कोई पूछे दुनिया में या मेरे आका भाई, या तो आपको देख ले, जब बोले आ जाता घर से, आप पास ज़ियारत, क़यामत में कैसा ढूंढूंगा? तो क़यामत में भी देख रहे कहा है, तो देख हौज़े कौसर में होता मैं गुनाहगारों को अपने हाथ से जाप पिलाऊंगा, जाबे कौसर दूंगा, फिर वो जाबे कौसर ऐसा जन्नत में गए तक प्यासा नहीं होगा। और फिर फरमाया देख वहां नहीं हुआ तो तू मेरे को छोड़ ले 20 साल पे, अरे 20 साल में तो आबाल का पड़ला रखेंगे, लेकिन इनकार करे तो हर आदमी बोलेगा ले मेरे से ये कराया है लिखा, वह झूठ बोलने का सवाल ही नहीं। तो सरकार अपनी नजर करम से इसके गुनाहों के पड़लों को भारत और बदली करती है, नेकियां डाल के, नजरों से नेकियां ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर अगर वहां भी नहीं मिले तो वहां भी नहीं मिला तो तू जो है पुलसिरात में देख रहे हो, मैं जो कट के गिरते रहा नीचे, मैं कटने नहीं दूंगा, ऐसा देखूंगा, नजरों से उतारते रहेंगे वो लोग पुलसिरात पर। कैसा उतरते नहीं उतरते। आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, समझ में नहीं आ रहा है, आधे बातें तो समझ में आ जा रहा था, पोल बातें, थोड़े जो बातें रह गए वो भी समझ में आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी इतनी जा रही है। तेरी नजर वो काम करती है, तेरा नाखुन वो काम करता है, तेरा थंब इंप्रेशन ये काम करता है। हाँ देख रहे ना तुम, कुछ भी नहीं, खाली अंगूठा लगा तो दरवाजा खुल जाता है।